Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Well, dear audience, I'm super excited to introduce a short video series in which we are going to learn not only English grammar, but we are going to understand some fundamental rules of translating Quran and understanding Arabic language as well. You know, in one sitting, you are going to understand not only Holy Quran, the divine message and translation, and we are also inshallah learning uh, English grammar at the same time. Isn't it exciting? We'll see how we are going to do this. Well, I'm not going to tell you English grammar rules bit by bit, but we are going to learn English grammar through Quranic verses. We will read Quran in Arabic, then we translate into English, and then after translating in English, we will try to understand that how grammar establishes sentence structure. And inshallah, in this one video, in one frame, you are going to understand so many things at the same time. Well, you see that this is the picture and how serene this picture is, how cool, calm, relaxed that picture is. It seems that you are in heaven, and I believe it. And I believe in one thing. When you start walking on the path of heaven, your life becomes heaven. If you want to seek, if you really want to have bliss in your life, just start walking on, walking a path towards heaven. Your life becomes heavenly. So, be, happy person and start living a heavenly life. For that, let's start reading Quran. And when we start reading Quran, when we understand the divine message, when we translate in English language, and obviously slowly and gradually we will also get mastery in grammar as well. So here is the first ayah. We are going to read it and then we'll translate it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم. Don't you feel the pleasure when you read Holy Quran and how sweet and peaceful that language is? I would love to read it again and again. Let me read it. Let me recite this again. Please listen to me carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيम. well, हम इसको इतना ही पढ़ेंगे. हम इसकी ट्रांसलेट करेंगे, उस ट्रांसलेशन के अंदर जो ग्रामर के रूल्स होंगे वो डिस्कस करेंगे. लेकिन पहली आयत यासीन है, ये हरूफ मुक़त्तआत है, ये वैसे के वैसे ही हम इसको लिखेंगे, इसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि इसका क्या मतलब है. दूसरा जो आयत है वल कुरआनिल हकीम. अब वाव का मतलब और होता है, अल जब किसी वर्ड के साथ लग जाए तो वो कसम के मानों में इस्तेमाल होता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में बाय के साथ यूज होता है, बाय द कुरआन. और हकीम का मतलब वाइज, हिकमत वाला है. तो यासीन, कुरान की कसम जो कि हिकमत से भरा हुआ है. अब मतलब हम एक ऐसी किताब को पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा कुरान पढ़ने जा रहे हैं जो यकीन जाने जिंदगी में हिकमत लाने वाला है, जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देने वाला है, वो आपको जन्नत के रास्ते पे चलाने वाला है. वो कुरान पढ़ने जा रहे हैं, साथ साथ अंग्रेजी भी सीख जाएंगे हम. ठीक है ना. जब हम कुरान को पढ़ते हैं ना, मैं आपको ये बात बड़ी गारंटी से कहता हूँ, जब आप कुरान को इसलिए पढ़ते हैं कि आपकी जिंदगी को संवार देगा, तो वाकई आपकी जिंदगी संवर जाती है. यकीन के साथ पढ़िएगा इसको, इसमें हिकमत है. और हिकमत के लिए देखें वाइज का वर्ड यूज होता है, बाय द कुरान द वाइज. फिर दूसरी ये भी है बाय द वाइज कुरान, कि ये हिकमत भरे कुरान की कसम. अल्लाह ताला कसम उठाता है कुरान की, वल कुरान हकीम. और फिर क्या करने के बाद कहा, यू आर इन्नका लमिनल मुरसलीन. इन्ना का मतलब होता है बेशक, लमिनल आप हैं, मुस्लिम पैगंबरों में से हैं. तो यू आर इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वाकई, लाजमी, कोई शक नहीं है. अमंग में से हैं, किस में से, द मैसेंजर्स में से हैं. और इसका दूसरा तर्जुमा ये भी, अनडाउटेडली यू आर वन ऑफ द मैसेंजर्स, यू आर वन. तो ये तीन आयतें हमने पढ़ी. हम जल्दी जल्दी से इसके देखें, लर्निंग देखते हैं क्या हुआ इसमें. जी पहली चीज जो हम सीखेंगे ना, वो ये है, ये प्रेपोजिशन. पहला वर्ड जो है ये प्रेपोजिशन है, बाय का वर्ड प्रेपोजिशन है. यहाँ पर अमंग
अमंग एक प्रेपोजिशन है। याद रखिएगा, जहां कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रेपोजिशन नजर आए, जैसे इन, ऑन, एट, बाय वगैरह होता है, तो उसके बाद अगला वर्ड बेटा जी कोई ना हमेशा नाउन होगा। देखें हमेशा नाउन है, ये देखें कुरान नाउन है, मैसेंजर्स नाउन है। और जहां कहीं नाउन आएगा उससे पहले आपको आर्टिकल नजर आ सकता है, जैसे द आर्टिकल है और यहाँ पे भी द आर्टिकल है। बहुत सिंपल है, आसान हो गया। दूसरा हम इसमें देखेंगे लफ्ज आया हुआ यू आर, ये आर, इज, एम आर, वॉज वर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सारे के साथ, इज, एम आर, वॉज वर, ये इतने ही है। इनको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ये लिंकिंग वर्ब है। इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में फर्क होता है। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि जब इनके बाद कोई नाउन इस्तेमाल हो जाए तो ये लिंकिंग वर्ब बनते हैं, या इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तब भी ये लिंकिंग वर्ब बन जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आए, तो आए के बाद मैंने लगाया एम, या मैं लगाता हूं ही, तो ही के बाद मैंने लिख दिया इज। अब इसके बाद मैंने नाउन लगा दी ना, आई एम, जैसे आर टीचर है, तो फिर ये एम क्या बन जाएगा, एक लिंकिंग वर्ब बन जाएगा। इस तरह मैं कहूँ ही इज आ स्टूडेंट, तो ये भी नाउन बन गया, और यहाँ पे इस लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा। आसान वर्ड है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, इस नाउन के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे ही इज सैड, ही इज हैप्पी, आई एम सुपर एक्साइटेड, तो ये एडजेक्टिव है, तो इस तब भी हम इनको लिंकिंग वर्ब ही कहेंगे। ठीक होगी जी। दूसरा हमने देखा प्रेपोजिशन, इसमें अमंग प्रेपोजिशन है, बाय, इसके बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होना चाहिए। ठीक है जी। अब वोकैबुलरी की तरफ बात कर लेते हैं। तो वोकैबुलरी की तरफ हमने देखा, ये एक लफ्ज था यहाँ पे मैसेंजर्स, तो मैसेंजर का मतलब पैगंबर होता है। इसको अपोस्टल्स भी कहते हैं, इसको सीयर भी कहते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं। दूसरा लफ्ज था ट्रूली, तो ट्रूली भी था, अनडाउटेडली भी, इंडीड, विदाउट, और इंडीड, विदाउट एनी डाउट, इसके साथ हो गया। ठीक है जी। आई होप सो यू एंजॉयड दैट first episode of this Surah Yasin, in which we have learned so many things. We try to understand the message of Allah Almighty, and on the same time we learn some grammar rules. हमने linking verb का concept समझा, linking verb क्या होता है, हमने preposition देखा, और कुछ vocabulary के point देखे। ठीक है, ये हमारा lesson 1 था। इंशाल्लाह हम इस lesson को चलाएंगे आगे। और बेटा जी, आपकी feedback बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अच्छी feedback देंगे, जारी बात है उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्राम आपके सामने, ये सीरीज जो ना वो डेली बेसिस पर आपके सामने आती रहेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जन्नत के तरफ जाने वाले रास्ते पे चलें। आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।